Good morning to all. I am again present in front of you my YouTube channel Dr. RS Mathematics and Geography classes. I am continue to this video for the classes of BSc, BTech and Polytechnic Diploma to find out the nth derivative, the product of the two function and yn0 the product of the two function with the help of the Leibniz theorem. You are study in my the previous video how to find the nth derivative with the help of Leibniz theorem product of the two function. In this video we are continue the yn0 how to find the yn0 with the help of the Leibniz theorem. This is the most important question. This comes in your exam in 10 marks questions. So let start this video, but starting previous this video I request you, if you new viewer my YouTube channel, so please like, share and subscribe my channel. I complete the all BTech syllabus in my YouTube channel. If you study in class of BTech, BSc and Polytechnic Diploma, then you subscribe, likes and share my channel videos and complete your syllabus. I will continuous the classes running on BTech first year. So this video is most beneficial for you. Let's start now, waste your times. You see this, if y equal to sin inverse x to the whole square, then prove that yn0 equal to 0 when n is odd and yn0 equal to this when n is of the even. Now start this video. So first we find the nth derivative of these functions. पहले हम y equal to sin inverse x equal whole square का nth derivative find out करेंगे with the help of the Leibniz theorem. So now starts, given that y equal to sin inverse x to the whole square. डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. पहले हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे. देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x देन y1 राइट द dy ओवर dx इन फॉर्म ऑफ dy ओवर dx को हम y1 या dy ओवर dx या y डैश किसी भी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी अप्लाई द पावर रूल टू sin inverse of x, after then differentiation of this function 1 upon 1 minus x square in of root. Now cross multiply of this 1 minus x square in root, y1 equal to 2 sin inverse of x. Okay, अब फर्स्ट वी एलिमिनेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. पहले हम इसका स्क्वायर रूट एलिमिनेट करेंगे आफ्टर देन द डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज अगर हम स्क्वायर रूट एलिमिनेट नहीं करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कॉम्प्लिकेटेड में आ जाएगा. सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 sin inverse x to the whole square. You see that in the board the sin inverse x, this is also make the y. देखिए, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट द बाई. यू राइट द वैल्यू ऑफ बाई इन प्लेस ऑफ दिस. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ बाई. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x. तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन. ओके, अब यहाँ देखते हैं कि इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में. तो आपने क्या देखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ बाई. तो यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. एक फंक्शन हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सेकेंड हमारा 1 बाई 1 स्क्वायर है इक्वल टू ये 4 ऑफ बाई 1. नाउ differentiating 1 minus x square as a differentiation of y1 square, right, 2 by 1 and of by 2.
plus y1 square as it differentiation of this function 0 minus 2x, similar process of 4 of y1. Okay, so taking the common of 2 y1 in complete process 1 minus x square, this is the y2 plus minus 2 बाहर और y1 x y1 इक्वल टू 2 into 2 of y1. 2 by 1 cancel out. Remaining value of this 1 minus x square y2 minus x y1 equal to 2. Value of this. Understand all of you? Simple procedure make the this form. तो आपने क्या देखा कि हमारे पास फंक्शन दिया था y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर. फर्स्ट भी डिफरेंशिएटिंग ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, हमने x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस. अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एलिमिनेटिंग द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, गॉट द वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर. ये देख रहे हैं ना, सिंपल सा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज मेक द बाई. यू राइट द वैल्यू ऑफ बाई इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर. देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ बाई. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो यू सी दैट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन. यहाँ देखा अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का रूल आप जानते हैं, फर्स्ट एज इट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. सिमिलर प्रोसेस यू गॉट द वैल्यू ऑफ दिस. अगेन अब अप्लाई this step by the Leibniz theorem. Understand all of you? If you any doubt, you write my comment box. If you want to any question solution, you write my the comment box. We are provide your solution in shortly. Now note this question please. We have the Leibniz theorem. Leibniz theorem. d to the power n, dx to the power n, u and v. Product of the function. We write the Leibniz theorem. मैं Leibniz theorem को यहाँ लिख रहा हूँ. देखिए nc0 un of v, nc1 un minus 1 v1, nc2 un minus 2 v2 plus and so on. That is the Leibniz theorem. It means आपने देखा कि nc0 nc1 nc2 we are discussed these value in previous video. अगर if you not see my the previous video, so please see my the previous video. After then you see this video better for the better understanding. से इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले के वीडियो आप देखिए और उसके बाद इसको समझिए. और जी आपके लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. तो यू एन एंड वी आर सीइंग दैट के फर्स्ट सेकंड हम इसमें ऐसी कंटिन्यूशन को पैदा करते हैं, अरेंज करेंगे कि वी फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द वन फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन आफ्टर द सम स्टेप द डिफरेंशिएशन शुड बी 0. हम इसमें u और v उस फंक्शन को लेट करेंगे जिसका v वो फंक्शन होना चाहिए कुछ समय बाद उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, और u वो फंक्शन होना चाहिए वी गॉट द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस. ओके, तो यू राइट. देखिए दिस स्टेप, दिस इज द v एंड दिस इज द u. बिकॉज y2 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा आपका y3 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे y4. दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन टू बी 0, सो यू रिप्रेजेंट द दिस इज द u एंड दिस इज द v. एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 2x, सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करने पर x, थर्ड बार डिफरेंशिएशन करने पर शुड बी 0. सो राइट nc0 1 minus x square and u of this yn plus 2 plus nc1 differentiation of this function minus 2x yn plus 1 plus nc2 minus of 2 yn. That's all. Next step you see that nc3 but differentiation of minus 2 should be 0, so other step should be 0. We are not write the next step.
क्योंकि अगर हम 2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप 0 आ जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई 0 आना है, तो अदर स्टेप हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो आपका ये कंडीशंस यहाँ पे पूरा हो गया फॉर दिस। अब ऐसे ही सेम प्रोसीजर, दिस इज यू एंड दिस इज द बी, माइनस ऑफ दिस एन सी 0, सिमिलर वहीं से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से आप। तो आपका एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन सी 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 और वाई एन। अब नेक्स्ट स्टेप 0 और 2 शुड बी ऑल्सो 0, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, वी राइट इन प्लेस ऑफ 2 इक्वल टू 0, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पे 0 ही आ रहा है तो एन तो आएगा ही था। सो वी राइट द वैल्यू ऑफ दिस एन सी 0 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 और माइनस 2 एन सी 1 वैल्यू ऑफ दिस एक्स एन सी 1 इज एन और y of n plus 1 minus this n minus 1 upon factorial 2 minus of 2 yn minus value of this x y n plus 1 minus n y n equal to of 0. Write the value of this, cancel out, इससे ये cancel out हो जाएगा। we know that NC0 is also 1, NC1 is also n, NC2 is n minus 1 upon factorial 2 and so on। ये वैल्यू हम प्रीवियस उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू ये होती है। तो देखिए वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2xn, वाई एन प्लस 1 राइट हियर, both are minus, so taking out the 2n plus 1 or yn plus 1 into of x। next step माइनस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करिए बेटा एन स्क्वायर वाई एन और दिस माइनस दिस प्लस एन वाई एन और माइनस का एन वाई एन इक्वल टू ऑफ 0, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। दिस इज द अप्लाइंग द लेबनी थ्योरम गॉट द इक्वेशन ऑफ दिस। हमने लेबनी थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो मेन इक्वेशन है हमारे पास ये फाइंड आउट हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर ऑफ दिस। अगर आपसे ये कहता है कि फाइंड आउट द इनर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय द लेबनी थ्योरम, दिस इज द राइट आंसर। अब ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, इससे आगे आपको नहीं जाना। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देखिए बीटेक का सिलेबस इतना ईजी है, अगर मैथमेटिक्स थोड़ा करना चाहें तो मैथमेटिक्स वो भी अपने दिमाग से निकाल दें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। मैंने बहुत सारे वीडियो भी इस टाइप से डाल रखे हैं। कंप्लीट यूनिट चल रहा है ये आपका, और जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू होगा मैं कंप्लीट 5 यूनिट सिलेबस करा दूंगा आपका यहाँ पे, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यू न्यू व्यूवर माय यूट्यूब चैनल, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा कोई मिनिमम फीस नहीं रखी गई है आपके लिए कि फ़ीस पे हैं। माई चैनल इज डिवोटेड द हुज स्टूडेंट दो दैट स्टूडेंट नॉट अफोर्डेड द कोचिंग फ़ीस, कोचिंग फ़ीस को नहीं कर सकते हैं। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशनल वो मिलता है, तो इसकी वजह से हम आपको आगे सिलेबस कंप्लीट करा दें। नोट दिस स्टेप। देखिए अब हमारे पास में वाई एन 0 फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास था y इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द होल स्क्वायर, यू लेट दिस इज द फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन गिवन था, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो भी हमारा इक्वेशन आएगा उसको आप सेकंड लेट करेंगे। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ऑफ 4 ऑफ y, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एंड लास्ट आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स, हमारे पास वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव का
y1 minus 2 equal to 0. This is the third equation. And fourth equation is that 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1 minus n square yn equal to 0. This is the fourth equation. ओके तो ये हमारे पास इस टाइप से 4 इक्वेशन आपको पास मिलेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या है, yn0। देखिए yn0 फाइंड करने के लिए क्या है, यू पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन प्लेस ऑफ x। yn0 का मैटर यह है कि जो x है इन 4 इक्वेशंस में, ये x के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है। और राइट करने का तरीका क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपका। देखिए इफ़ x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन पुट करिए आप। देखिए यहाँ पे लिखने का x के प्लेस पे 0, देन y0 इक्वल टू साइन इनवर्स 0 का होल स्क्वायर इम्प्लाई दैट y0 इक्वल टू ऑफ 0। यू गॉट द वैल्यू ऑफ y0 0। देखो आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y के साथ ब्रैकेट में इस टाइप से 0 लिखेंगे। तो y0 इक्वल टू साइन इनवर्स 0 का होल स्क्वायर y0 इक्वल टू 0। सेकेंड 1 माइनस 0 का स्क्वायर y1 स्क्वायर इन 0 इक्वल टू 4 ऑफ y0। तो दिस इज वैल्यू तो y1 स्क्वायर 0 4 y0 की वैल्यू यू गॉट फ्रॉम दिस, यूज ऑफ दिस इम्प्लाई दैट y1 स्क्वायर 0 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाई दैट y1 0 इक्वल टू इज ऑल्सो 0। ये भी वैल्यू 0 आ गया हमारे पास। ओके अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ये थर्ड। तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर y2 0 माइनस 0 एंड y1 0 और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ दिस y2 0 इक्वल टू ऑफ 2। y2 0 की वैल्यू ये आ गया। ठीक, अब हमारे पास बनता है आपका फोर्थ इक्वेशन। ये थर्ड में लगा दिया। अब फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ पे आ जाएंगे आप, देखिए वैल्यू 1 माइनस 0 का स्क्वायर yn प्लस 2 ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 2n प्लस 1 इंटू ऑफ 0 और yn प्लस 1 इंटू 0 माइनस n स्क्वायर yn 0 इक्वल टू ऑफ 0। देखिए ये मल्टीप्लाई 0 है, आपको दिख रहा है 2n प्लस 1 0 yn प्लस 1 0 वैल्यू 0 है तो इसको 0 कर दीजिए। यहाँ बचा केवल yn प्लस 2 0 इक्वल टू ये बचा n स्क्वायर y ऑफ 0 yn 0। इसको यहाँ लिखिए बेटा yn प्लस 2 0 n स्क्वायर yn 0। दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन, मेन रोल ऑफ दिस इक्वेशन। ये पांचवा हो गया। अब आगे का प्रोसीजर इससे अप्लाई करें। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। आगे अगेन रिपीट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए y इक्वल टू दिस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है। जब x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो सारा हमारा वैल्यू जो आएगा उनको ब्रैकेट में बंद करते जाइए जिन वैल्यूओं का यूज होगा। यूज करने के बाद हमारा सारा मैटर यहाँ पे आ गया। और लिखने का तरीका यही है, जब 0 पुट करेंगे तो y के प्लेस पे देखिए यहाँ पे y0 तो ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को लिखेंगे, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द y0। अंडरस्टैंड। इफ़ यू एनी डाउट, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे डायरेक्ट जिस चैनल से जो आपका मेरा बना हुआ है नंबर पे, उसमें नंबर भी पड़ा हुआ है, चाहें तो नंबर नोट लग के 9719163762 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं आप। ओके इस नंबर पर कॉल करके भी अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए करें, तो मैं लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ओके नोट दिस स्टेप ऑल ऑफ यू। ओके नाउ देखिए वी गॉट द इक्वेशन ऑफ दिस yn प्लस 2 0 इक्वल टू ऑफ n स्क्वायर yn 0। देखिए इफ n इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन। आपने कहा था कि n इज ऑड yn 0। जब आप ऑड नंबर n की वैल्यू पुट करते हैं तो yn क्या है 0 आता है, तो पहले ऑड नंबर ही पुट कर लेते हैं हम। देखिए जब y1 पुट करेंगे यहाँ पर
तो ये हो जाएगा y30 इक्वल टू 1 का स्क्वायर y10। अब चेक करिए y10 कितना है, देखो आप ये लिखा हुआ है y10 इज ऑल्सो 0, तो y30 इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 0 दैट इज 0, तो y3 की वैल्यू 0 आ गया आपके पास। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब y3 पुट करिए, आपका 1 पुट किया, आप 3 पुट करिए। आप देखिए जब y3 पुट करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y3 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर y30, तो ये तो हो जाएगा y5 इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 3 इंटू y30, अभी आपने फाइंड आउट किया है 0 दैट इज 0। तो आपने क्या देखा कि जब हम ऑड नंबर पुट करते जाते हैं तो जनरली क्या है कि ऑल वैल्यू शुड बी 0, सारी वैल्यू 0 आ जाती हैं। तो यू राइट कि yn0 इक्वल टू 0 इफ n ऑड, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन यहाँ पे प्रूफ हो गया कि यू पुट द वैल्यू ऑफ n इन ऑड नंबर। जब आप n की वैल्यू ऑड नंबर में पुट करते हैं तो yn0 हमारे सारी वैल्यू 0 आती है। तो फर्स्ट प्रूफ इज दैट राइट। ओके, पहला प्रूफ हमारा यहाँ ख़त्म हो गया कि yn0 जैसे ही आपने पुट किया ऑड नंबर में n की वैल्यू को तो सारा वैल्यू 0 आ रहा है। देखिए y3 भी 0 आया, y5 भी 0 आया, ऐसे ही नेक्स्ट जाएंगे y7 आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, y9 जाएंगे वो भी 0 आ जाएगा। तो यू राइट ओनली yn0 इक्वल टू 0 इफ n ऑड। n ऑड नंबर पुट करते हैं तो yn0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। फिर एनी डाउट, राइट दिस क्वेश्चन नाउ। Similar process, you put n in even number। देखिए n is even, n इक्वल टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन। पहले आप 2 पुट करिए, y ऑफ 2 प्लस 2 0 इक्वल टू 2 स्क्वायर y2 0, तो ये हो गया y40 इक्वल टू 2 स्क्वायर y2, वैल्यू ऑफ y2 राइट ओनली 2 नॉट अ 0। y2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस इनटू 2, सो यू गॉट y40 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर राइट इन दिस फॉर्मेट। फिर अगेन n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, आप n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, सिमिलर प्रोसेस। तो ये आपका y4 प्लस 2 6 0 इक्वल टू ऑफ 4 स्क्वायर और y40, y4 इज ऑल्सो गॉट द वैल्यू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यू राइट इन प्लेस ऑफ दिस, तो y ऑफ 6 0 इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू ऑफ दिस 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो y6 गॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6, ओके, तो y ऑफ 8 इक्वल टू 6 का स्क्वायर and y of 6 0, you write in the form of this y8 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारा वैल्यू y8 तक आ गया। ओके, तो ऐसी सिमिलर प्रोसेस में आप देखेंगे हमारा n टाइम तक जाना है। कहाँ तक जाना है आपको, n टाइम तक जाना है। तो n टाइम तक जाने के लिए आप कैसे राइट करेंगे, देखिए yn0 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर n माइनस 2 का होल स्क्वायर वेयर n डज नॉट इक्वल टू 2 व्हेन n इवन नंबर, n इवन। दिस इज द सेकंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता ही आता है, चाहे बीएससी ले लीजिए, बीटेक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसमें सभी में पढ़ा होगा। तो आपने देखा दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। ये हमारा लेबनीज़ थ्योरम की हेल्प से हमें yn0 फाइंड आउट करना था। तो yn0 में आपने देखा कि हमारा आंसर अगर ऑड नंबर आता है तो yn0 ऑल वैल्यू इज 0, जब इवन नंबर आता है तो yn0 इक्वल टू ऑफ 0। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो फॉर योर एग्जाम। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू एनी डाउट in this question या in this topic या mathematics, BTech, BSc, Polytechnic, high school, inter, CBSE, ICSE boards, if you any doubt you write by the comment box. So I request again you, if you new viewer my YouTube channel, so please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching the complete video.